Okay. Okay, students. Now we are starting our lecture. Look, we have to draw these inequalities in a graph, and when we draw inequalities, they have shaded like this one. I will tell you each and every step how to draw these equation in a graph paper, and what do we mean by this shaded area. So bachcho, kindly write these equation in your copy. Yes. Yes, बच्चा. पेपर 1 करना है कॉपी में करना है उसके कोई What do you mean by paper 1? Hello. ज्योमेट्री का Ismail. पेपर 1 की भी पीडीएफ है ना यस, मैंने उसकी 2 वीडियोस, एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियोस बनाएंगे, एक वीडियो और बना के भेज दूंगा. डोंट वरी, वो हो जाएगा. ठीक है, समझ लो, वो मैं खुद सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ. बस उसमें आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के हैं. ठीक है बच्चे. हेलो. हेलो. यस जल्दी. सर भाई जल्दी है. स्टॉप. Okay, now our next task is to draw these kind of inequalities in graph paper, which is not actually difficult. This is really a simple one, very, very simple, but you have to understand some basic things. So kindly write these inequalities in your copy because I have to shift to GeoGebra software to draw these kind of things. Kindly write these inequalities in your copies, then I shift to GeoGebra because I don't have that PDF on that time. So I will ask you which inequality we are actually drawing. Okay. Hopefully you write these inequalities. Let me shift to GeoGebra software. Okay, bacho. Can you tell me which inequalities we are drawing? X is greater than equal to 0. I think this is our first. Can anyone tell me the second one? Hello. Can you hear me? So, Y is greater than or equal to 1. okay, Y is greater than equal to 1. And what about third one? So x plus y is less than or equal to 5. Okay, X plus Y is less than or equal to 5. Dua, are you listening me? Hello. Dua, quickly, yaar. Do I audible? Do I audible to you? Hello. Aga, can you listen to यस me? सर Okay, fine. So, okay, fine. So, first of all, for drawing these inequalities, these are inequalities, we have to draw a simple version of that. Like we ignore less than or greater than signs and we simply draw x is equal to 0. Any person who know about x is equal to 0, what do you mean, what we mean by x is equal to 0? This is actually a straight line. Na? So tell me, which line have x is equal to 0? Yes. सर वर्टिकल लाइन It's definitely a vertical line, but which vertical line? In that line, we have x is equal to 0. This is very famous line, yaar. तो y What, why? तो What? y इंटरसेप्ट पे होगी लाइन ये वाली सो Beta, this is actually y-axis, yaar. This is actually y-axis. X is equal to 0 यस means सर y y-axis. इंटरसेप्ट Y-intercept, but सर y एक्सिस सॉरी this is y-axis. Aga, do you understand this thing? Hello? Hello? Aga, can you hear me? Yes, sir. Can you understand x is equal to 0 is actually y-axis? Hello, hello. Yes, sir. Okay, now, can anyone tell me now? Now x is greater than equal to 0. This is actually only x is equal to 0, but we have to draw x is greater than equal to 0. This is really simple. If x is greater than equal to 0, that means I want to know that those order pairs which have x coordinate
which have x coordinate greater than equal to 0. For example, if I said this is the point which satisfy this inequality, but the x-intercept of this point is actually -2. So this point will not satisfy this inequality. You have to understand, people, you have to understand that what it means. It means then we have to find those order pairs in which the x coordinate must be greater than or equal to 0. Equal to 0, that means these are the order pairs. Actually, these are the order pairs. Look, this order pair means 0, 2. This order pair means 0, 3. So it satisfy x is equal to 0. These order pair will satisfy. But now we have to find also those order pairs which satisfy the x greater than 0 as well. So I think if I take this point like this one, 4, 4. So this point will satisfy this inequality easily. This point will satisfy this, because this inequality says that we have to find those order pair which x coordinate must be greater than 0. So the x coordinate is greater than 0. Okay, anyone tell me, is this point satisfy this inequality? Hello? Hello? Yes, sir. Which is Yes, sir. 2, -2. Okay, tell me, is this point satisfy this inequality? Hello, hello? Yes, Yes, sir. sir. Which is 6, -1. That means, students, now I am shedding those order pair which satisfy this inequality. So I give you a proper definition of this inequality. I'm not giving you I would say that normally teacher would explain this is x plus y greater than 6. What would be the x plus y? Hello? This Sir, inequality. less than or equal to 5. Less than or equal to 5. Okay. So, bachcho, these are actually those order pair, this shaded area. This is actually an area which represent those order pair which satisfy that x coordinate must be greater than or equal to 0. So this is whole area. Ismail, do you understand this thing, bache? Ismail? Hello? Can you hear me, Ismail? दोबारा समझा दें. वापस समझा दूं? Ismail, this is very simple. Very simple. Look, Ismail, एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है मुझे वो ऑर्डर पेयर, ये इसमें इनफाइनाइट मेनी ऑर्डर पेयर्स हैं, मुझे वो ऑर्डर पेयर बताओ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो. इस्माइल, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर की बात करूं, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर की बात करूं तो ये ऑर्डर पेयर क्या है? -5, 3. पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली 0 से बड़ा नहीं है, नहीं 0 के बराबर है. तो ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. इस्माइल, ये बात समझ आ रही है? हेलो इस्माइल, जल्दी इस्माइल, जल्दी. Yes. ओके, नाउ इस्माइल, अगर मैं ये ऑर्डर पेयर की बात करूं, इस ऑर्डर पेयर की जो है 5, 2, 5, 2, क्या इस्माइल ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. सो इस्माइल, इसमें जो हर ऑर्डर पेयर होगा ना इस साइड पर, हर ऑर्डर पेयर इस साइड पर, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ का जो हर ऑर्डर पेयर होगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो जो सेटिस्फाई करेगा इस्माइल, वहां पर शेड करेंगे. कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इस्माइल? हेलो? Yes, sir. फाइन. ओके, नाउ वाई. यस, दुआ जल्दी जल्दी, दुआ जल्दी. x plus y is less than or equal to 5 है, तो सर हम सिर्फ 5 तक नहीं करेंगे. बेटा, इसको मैं आ रहा हूँ, पहले मैंने इसको किया, ये वाली बात समझ आ गई है? ये बताओ. यस सर. मैं सब जगहों पे आ रहा हूँ, डोंट वरी. मैं सब जगहों पे आ रहा हूँ, मैं सबको प्लॉट करूंगा, सब सिखाऊंगा. पहले मैंने सिर्फ एक पर वो बात की है, मैं सब पर आ रहा हूँ. ओके बच्चों, चले जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. फॉर y is greater than or equal to 0, we have to first plot a simple version. Y is equal to 1. Y is equal to 1. Even if this
inequality does not have equal to sign, still I have to draw first y is equal to 1. Still I have to draw this y is equal to 1 first. Okay, now y is equal to 1, we have to draw. Anyone know where we plot y is equal to 1? I already told you how to draw these lines. Tell me, y is equal to 1 will be a vertical line or horizontal line? Hello? So horizontal. Yes, sir. Horizontal. Horizontal means this one? Yes, that's good. Aga, do you know Yes, y sir. is Yes, equal sir. to 1? So hopefully people, So horizontal line होगी. hopefully people you will agree with me. Let me use a GeoGebra. Why would I use this? Hopefully people you will agree with me. This line is actually this line. Okay, can this line represent y is equal to 1? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many people understand this thing? Y is equal to 1 is actually this line. Okay, hopefully you understand this line. Now I have to share सर this. इससे ग्रेटर भी तो हो सकता है ना? वापस क्या कह रहे हो इससे ग्रेटर भी तो हो सकता है ना, मतलब बेटा? अभी मैंने 2 पे सिर्फ ये 3 पे पॉइंट करना है। अभी मैंने सिर्फ ये प्लॉट किया बच्चे, अभी सिर्फ मैंने ये प्लॉट किया है। मैं इस पे आ रहा हूं, यहां तक बात समझ आई है? y इज इक्वल टू 1 यस सर। प्लॉट। Yes, sir. सबर करो, मैं सुकून से हर चीज समझा रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करो, ठीक है? नाउ आई एम चेंजिंग माय कलर टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स, our second task is x is greater than equal to 1. So we want those order pair which have y coordinate is greater than or equal to 1. It may be equal to 1 and it's greater than 1. Look, these are actually those lines which have each order pair will be equal to 1, like minus 5 comma 1. This is minus 6 comma 1. So this line is also included. And if I say this point may be the point which satisfy this equation, so I would say that, okay, this is actually minus 4 and minus 1, but we consider those order pairs which must have y greater than equal to 1. So it cannot be obey. Can you understand this thing? Hello? Can you understand this thing? Hello? Yes, sir. जो लाइन के ऊपर होंगे पॉइंट्स यस है वो सर। सारे सेटिस्फाई जो करेंगे, जो लाइन के नीचे होंगे वो ऊपर, सेटिस्फाई नहीं बिल्कुल करेंगे. सही। पर बेटा काम की चीज मैंने ये सिखाने, ये सारे ऑर्डर पेयर तो होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, पर जो मैंने काम की चीज सिखानी है वो सीखो। हाँ, ये सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, ये सारे ऑर्डर पेयर। पर मैं इस जगह शेड नहीं कर रहा। अब मैं इस जगह शेड क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं सिर्फ उस जगह शेड करूंगा जहां ऑलरेडी शेड हुआ होगा, क्योंकि मुझे सबका कॉमन शेड देखना है। बच्चों, ये ऑर्डर पेयर्स हैं जो सेटिस्फाई, मतलब ये y x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक्चुअली शेड है। इसका एक्चुअल शेड ये जो ऊपर जा रहा है, पर मैं ये शेड को रिमूव कर रहा हूं। रीजन सिंपली, ये शेड क्यों रिमूव कर रहा हूं? क्योंकि जो मेरा पिछला शेडेड रीजन है ना, वो यहां पर आ रहा है, और मुझे क्या देखना है बच्चों? मुझे सबका कॉमन शेडेड रीजन लिखना है। तो अगर मैं यहां रखूंगा ना, तो समझ लो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये बात समझ आ रही है? हेलो हेलो, जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा बहुत काम की चीज है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना सारा शेड कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं कि यार अब एक्चुअल शेड कौन सा होगा, तो वो फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं। सो इस परेशानी के लिए मैंने ये शॉर्टकट रखा है ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना हो। भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लॉट किया, उसका शेड किया, ठीक है। दूसरा शेड मैंने क्या किया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये शेड। अब जो मेरा आंसर का शेड है ना, अभी तक ये है जो रेड और ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली अब मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है, x प्लस वाई पहले इक्वल टू 5 करूंगा। तो बच्चों अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y का आंसर 5 आएगा। हेलो, x की जगह 0, y का आंसर 5 आएगा बच्चों। और अगर y की जगह 0 रखूंगा तो x का आंसर 5 आएगा। मुझे 2 पॉइंट सही होते हैं ना? अनफॉर्चुनेट, आई नो, आई थिंक इंटरनेट शायद मसला कर रहा है। क्या मेरी आवाज अब आ रही है आपके पास? हेलो, क्या मेरी आवाज अब आ रही है बच्चों? हेलो, कैन यू हेयर मी?
स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यार मेरे पास नेट दूसरा कनेक्ट था, मैंने उसको नोटिस नहीं किया। चलो खैर, भाई मैंने क्या क्या प्लॉट कर लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो बेसिक शेडेड एरिया क्या आया था, अगर आपको याद हो तो वो शेडेड एरिया ये आया है, ये आया था ना खाली एरिया। बच्चों जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ भाई, दुआ इस्माइल, ये एरिया आया था यस ना। सर। यस सर। यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ऑब्वियसली आई एम एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, तो मैं आपको वो शॉर्टकट्स पर बात कर सकता हूँ। एंड आई नो अनफॉर्चुनेटली आगा आप लोग, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पर। तो ये सरमत को बोलो यार अक्लमंदी करे, मेरी क्लासेस ज्वाइन करे, वरना उसको डिफिकल्टी होगी। ये जो ऑनलाइन सेशन होता है ना, वीडियो देखने का और उस वक्त समझने का ना, सामने ये जमीन आसमान का फर्क होता है। तो क्लासेस मिस नहीं करो, बिल्कुल मिस नहीं करो। ओके, ये क्या है, ये मैं इसको वापस बड़ा कर दूं, कोई मेरा शेडेड एरिया, हाँ चले आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट, नाउ फाइनली बच्चों, मुझे जो आखिरी प्लॉट करनी है वो x, ओके लेट मी, वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। जैसे मैं कह रहा था, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा y का आंसर 5 आएगा, और अगर मैं 5 y की जगह 0 पुट करूंगा तो x का आंसर 5 आएगा। बच्चों मेरे साथ हो यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. यस सर। दैट्स रियली गुड। नाउ अब मैं इस पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूं। तो तो ये एक, कैसे होगा? अरे यार दुआ, गलत बात, याद करो हमने ये सीखा है एक लाइन को प्लॉट करना। मैं किसको ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इस लाइन, यस सर। यस सर। ऐसे नहीं करो, देखो मैंने सब चीजें आपको बता के लाया हूँ, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा ताकि आप आगे चीजें समझ सको। तो ये चीजें अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने ये की हुई है, ये मैंने बहुत तफसील से सारी बातें की, और वीडियोस मौजूद है, अगर मुश्किल हो तो फिर वापस देख सकते हो। ठीक है, सो ओके, एक 5,0 था और दूसरा क्या था, 0,5 था। ये मैंने दो दो जगह प्लॉट किया है। अच्छा, एक 0,5 था, मुझे जियोल जुबरा, यस। दूसरा है 5, ये, और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं हर चीज की वेरिफिकेशन करवा रहा हूं। अच्छा बच्चों, अब मुझे प्लॉट करना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, यानी मुझे बच्चों वो ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिसकी मैं x और y की वैल्यूज यहां पर रखूं, आंसर या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो, दुआ Yes, sir. यस सर। सो फर्ज करते हैं, अब ये लाइन है ना, फर्ज करते हैं कि वो ऑर्डर पेयर शायद क्या पता ये 0,0 सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं 0 और 0 रखूं, यानी 0 x की जगह 0 प्लस y की जगह 0, तो नोटिस करो 0 प्लस 0, 0 छोटा होता है ना 5 से। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस का मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, -1, -3, तो x की जगह -1 और y की जगह -3 हो जाएगा -4। जाहिर बात है -4 छोटा होता है 5 के। इसका मतलब इस साइड वाले पॉइंट्स तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं लाइन के उस साइड जाता हूं, चेक करूं, करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा 4,4, ओके 4,4। अब ये 4,4 पुट करता हूँ, 4 प्लस 4, आंसर आएगा 8, और 8 कभी भी 5 से छोटा नहीं होता। मतलब इस साइड के पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस साइड के यानी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। मुझे कौन बताएगा, अगर आपने समझा, मुझे कौन बताएगा कि कलर सिर्फ कहां पर होगा? दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे कौन सर जो बताएगा? स्क्वायर बन सर जो रेक्टेंगल बन रहा है ना उसकी। रेक्टेंगल तो खैर एक किस्म का नहीं, कलर होगा, जाहिर बात है इन सब जगहों पर कलर होगा, पर मैं कहां पर करूं? मैं इसको मिटाऊंगा, ये इन सब जगहों पे बेसिकली इस लाइन का कलर होगा, ये पॉइंट सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। पर मैं कह रहा हूं मैं मुझे, ट्रायंगल। यस सर। सर ट्रायंगल सर से बन रहा है। ट्राइंगल। पर मैं सिर्फ किस जगह कलर करूंगा बच्चों? सर ट्राइंगल बन रहा है उधर। ट्रायंगल से बन रहा है उसमें। जी बिल्कुल, थोड़ा और मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल पे कलर करूंगा जो सबका कॉमन होगा। आई होप बच्चों मेरी बात समझ आ गई होगी। और इसको प्लॉट कहां पर करोगे? अपने ग्राफ बुक में, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बच्चों मेरे साथ हो सबके सब? हेलो, यस ये सर। करना आ गया? यस सर। दिस इज रियली यस सर। वेरी वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट।
you may remove all remaining color. My final color would be this one. You may remove all color. And this is a solution of these three inequalities. We said that this is a solution of these three inequalities. अब इन तीन inequalities का solution का मतलब क्या होता है, चलो वो भी मैं आपको वर्डिंग में समझा दूं. ये वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं बच्चों. लेट मी यूज अ रेड. ये वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं जो तीनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये वाली बात ध्यान में रहेगी बच्चों. हेलो. Yes, यानी ये sir. जो ऑर्डर पेयर्स है ना, इनफाइनाइट मेनी ऑर्डर पेयर्स, ये तीनों इनइक्वलिटीज को मान रहे हैं, एक नहीं तीनों को. और ये कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज, जो एक से ज्यादा इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करते हैं. सो दिस इज रियली अ वेरी यूजफुल सेशन. होपफुली अब मैं वापस मूव करूंगा मेरे बुक पे. और अगर आपने मेरी ये बात समझी है तो डेफिनेटली आपको अब नेक्स्ट बातें और आसान लगेंगी. मतलब ये बहुत मेजर पार्ट था. तो इसने हमसे कहा था कि ये इनइक्वलिटीज, मैंने एक यूनिट के लिए और प्लॉट करनी थी भाई. मैंने कौन सी की, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन, एक और भी थी. चलो खैर, फिर भी मैंने आइडिया दे दिया. इसको भी प्लॉट करते हैं यहाँ पर और खाली शेडेड रीजन देखते हैं और कुछ भी नहीं होता. सो टेक्निक वही है, कोई टेक्निक डिफरेंट नहीं है. अगर अब आपको आइडिया आया है तो जनाबे मुकाम आप इसको खुद से प्लॉट कीजिएगा, इन दो को. ये इसने कम दिया है, छोटा दिया है, तो इन दो को खुद से, मैंने अब पीडीएफ भी शेयर कर दी है, तो ये करना बच्चों. अब गेम स्टार्ट हो रहा है. अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो हम पीछे करके आए. सारी की सारी चीजें यूज होंगी बच्चों. तो चलो अब देखते हैं उसकी नेक्स्ट डिमांड क्या है. तो बच्चों कहता है राइट डाउन द इनइक्वलिटीज विच डिफाइंड बाय अनशेडेड एरिया. ये जो अनशेडेड एरिया है ना, इसको जो डिफाइन करेगी इनइक्वलिटीज ना, वो बताओ. पहले काम क्या करते हैं बच्चों, एक ये लाइन है, ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, ये मेरी तीसरी लाइन है, और ये मेरी चौथी लाइन है. इन चारों लाइंस की इक्वेशन बनाते हैं. और याद करो, मैं बता चुका हूं लाइनों की इक्वेशन बनाने के लिए. फर्ज करते हैं ये लाइन 1 है, ये वाली. मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और स्लॉप चाहिए. यानी ये पॉइंट क्या है, -4,0. और कोई एक और पॉइंट ले लो, ये भी इसी लाइन का पॉइंट है. वो क्या दिया हुआ है आपके पास, 0,4. बेटा अगर दो पॉइंट्स गिविंग हो, हम इक्वेशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी. क्या इन दो पॉइंट से m फाइंड कर सकते हैं बच्चों. हेलो. Yes, sir. तो मुझे अगर m फाइंड करना होगा तो m कैसे फाइंड करूंगा, 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस 4. तो m की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1 आ रही है. जल्दी. यस सर. Yes, sir. और मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4x प्लस 4. मुझे कौन बताएगा ये मैंने c की वैल्यू 4 क्यों लिखी है. सर क्योंकि 4 पे लाइन आ रही है, मतलब इंटरसेप्ट कर रही है. y इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है. सो मैंने पहली इक्वेशन ड्रॉ कर ली आपके लिए. हेलो हेलो. ये वाली इक्वेशन समझ आ गई. ऑब्वियसली मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प हुई. जैसे मैंने कहा था आगे चैप्टर आएंगे, मुझे कोऑर्डिनेट m ज्योमेट्री. तो 1 आया है ना. हाँ m1, ओ सॉरी, थैंक यू बेटी, m1 आया है. तो ये यहाँ पर सिर्फ x होगा, x प्लस 4. यानी ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x प्लस 4. थैंक यू दुआ. आगा इस्माइल दुआ, ये बात समझ आ गई. Yes, sir. यस सर. चलो यार आगा मुझे ये बताओ, अब मुझे इस इक्वेशन की ड्रॉ करनी है, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है. कौन से दो पॉइंट्स लूं, दो पॉइंट्स बताओ जल्दी से. Sir, 0, -2. वेरी गुड आगा, वेरी वेरी गुड. वो जब मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वो सोचे तो मजा आ जाता. दूसरा पॉइंट कौन सा लूं बेटे. Sir, 4, 0. आ गए हो यार. इसके लिए भी कह दूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी. अच्छा ये मेरी लाइन 1 हो गई, लिख लूं ताकि मुझे याद रहे बाद में. अच्छा लाइन 2. तो बच्चों स्लॉप क्या आएगा, इसके लिए m निकालूंगा तो क्या होगा, 0 + 2 अपॉन 4 - 0. 4 - 0 यानी आंसर 1/2 आ रहा है. तो आई थिंक y इज इक्वल टू 1/2x प्लस बल्कि -2. हाँ भाई क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन बनेगी लाइन 2 की. यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके. अच्छा जी, अब मुझे ये दो इक्वेशन भी बनानी है, ये दो. यार इस्माइल हेल्प करो,
इन दो के लिए इसकी बताओ दो पॉइंट कौन से लूं? ये लाइन है, सर 0,6 ये लाइन है 4। अच्छा मैं लाइन लिख लूं, ये है लाइन 2, ये है लाइन 1, और अब मैं लाइन 4 के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या करूं बच्चा, क्या लूं? लाइन 4 के लिए, लाइन 4 नाम दिया हुआ तो मैं इसको लाइन 4 दे रहा हूँ। सर 0,1 0,1, वेरी गुड बच्चा। और 2,0 और 2, आ गया यार, आ गया, अच्छा। तो अब ये दो पॉइंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब m निकालना होगा। m कैसे मिलेगा? तो मैं कहूंगा 0 - 1 अपॉन 2 - 0, दैट मीन्स हमारे पास होगा -1/2। तो कहूंगा y इज इक्वल टू -1/2 x, और c की वैल्यू है 1। ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई? चौथा। यार दुआ, लाइन बची है थर्ड वाली ये है। दुआ बताइएगा इसकी, इसके लिए कौन से दो पॉइंट्स लूं? 0,6 8,0 0,6 एंड 8,0। ठीक है बेटा, अब मुझे नेक्स्ट बताओ मैं क्या करूं। y इज इक्वल टू, ये लाइन कौन सी है? लाइन 3 है, 3 के लिए काम करूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लॉप बताओ, स्लॉप कैसे लूं हुआ? सर 0 - 6 8 - 0 m की वैल्यू कह रही हो 0 - 6 और 8 - 0, 8 - 0 तो कितना आंसर आ रहा है m का? आई थिंक 3 माइनस upon के, 4 नहीं -3/-2/, ना 3/4। थैंक यू। 3/4 ठीक है जी, डन हो गया। तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू -3/4 x, और क्या होगा बच्चों? +6। ये मैंने लाइंस फाइंड कर ली, तो मैं अब सिर्फ लाइंस को लिखूं। लाइन 1 मेरे पास है, लाइन 1 कौन सी है? ये वाली, y इज इक्वल टू x+4। लाइन 2 मेरे पास है 1/2, y इज इक्वल टू 1/2x-2। लाइन 3 आपके पास है, लाइन 3 आपके पास क्या है, कहां पर है, कहाँ है लाइन 3? सर सर ऊपर -3/4 x + 6 -3/4x+6, और लाइन 4 हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू तो लिखूं, y इज इक्वल टू -1/2x+1। ये लाइन 4 हो गई। मैं बाकी सब मिटा रहा हूं। बेटा मेरे साथ हो यहाँ तक? लाइन जो मैंने बनाई है, हेलो? Yes, sir. यस सर ये बिगर वर्जन है, पर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। वो आपको, अब जाहिर बात है बिगर वर्जन समझा रहा हूँ, तो इसके पीसेस जो बनेंगे वो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, कुछ इक्वेशंस दे देगा, कुछ इक्वेशंस पूछ लेगा, वो ऐसा करेगा। जब हम इसके टॉपिकल वास्ते हो जाएंगे तो आप देख सकोगे, पर बिगर वर्जन देख लो। अब बच्चा, मुझे एक्चुअली वो इनइक्वालिटीज देनी है जो कह रहा है अनशेडेड, यानी दूसरे अल्फाज में उसने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये बेसिकली सॉल्यूशन होना चाहिए। वो कह रहा है राइट डाउन द इनइक्वालिटीज विच डिफाइन अनशेडेड, और अनशेडेड क्या है? ये रीजन। तो ये मेरा एक्चुअली कलर रीजन है, दूसरे अल्फाज। अब बच्चों बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर शॉर्टकट से बात करनी होगी। लाइन वन ऐसी है, तो लाइन 1 जाहिर बात है बच्चों, अगर मुझे ये शेड एरिया चाहिए तो लाइन 1 को कहां पर मूव करना चाहिए, शेड बनाना चाहिए? लाइन 1 को इस साइड शेड बनाना चाहिए, है ना भाई? तभी तो ये शेडेड एरिया इसका होगा ना। तो लाइन 1 को क्या करना होगा? इस साइड शेडेड एरिया बनाना होगा, ताकि वो मैच करे इसके साथ। बच्चों ये वाली बात समझ आ रही है? हेलो? Yes, sir. सो यानी लाइन 1 को इस साइड के ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर वो इस साइड के ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगी तो बेसिकली इनइक्वालिटी लेस देन होगी या ग्रेटर देन, ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लो इस साइड का। फॉर एग्जाम्पल ये उठा लो, चलो 4,0, ये वाला 4,
0। और चेक करो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी किस कंडीशन में, लेस देन में सेटिस्फाई करेगी या ग्रेटर देन में। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ लाइन 1, ये लाइन 1 ही था ना, ये लाइन 1 ही, हाँ। मैं लिख रहा हूँ पहले x लेस देन x+4, यानी अब मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ y की जगह 4, y की जगह 0, x की जगह 4। क्या 0 आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, जल्दी बोलो। हेलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ यस रही है? सर, अब आई। अब आई। ओ यार इंटरनेट। अच्छा बच्चों, कहाँ तक सुना था? ये बात सुनी थी कि इस साइड पर होगा? जल्दी बताओ, कहाँ तक सुना था? नो Yes, सर। sir. यस सर। सर ये 3,0 भी हो सकता है ना? 3,0 भी हो सकता है, मर्जी है, वो ले लो, जो भी ले लो, मर्जी है। 5,0 नहीं हो सकता? 5,0 भी ले सकते हो, कोई भी इस साइड का एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो बेटी, कोई भी पॉइंट। मैं क्या कह तो रहा वो हूँ, इस साइड का तो है ही नहीं। 5,0 ये रहा ना 5,0। नो सर, जहाँ पर हमने शेड किया है वहां पर तो नहीं आ रहा है। बेटा बेशक ना हो, पर ये तो सबका कॉमन शेड है ना बच्ची, ये तो बात की बात है। ये इनइक्वालिटी अगर लेस देन होगी तो ये इन सबको सेटिस्फाई करेगी। बात समझ आई है बच्ची? दुआ, जल्दी बताओ। यस सर। तो मैं कह रहा हूं यस सर। फर्ज करते हैं कि ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इधर डॉट ये लगा हुआ है तो इक्वल टू भी आएगा। नोटिस करो, ये इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब इसको अगर इनइक्वालिटी में चेंज करना है तो कैसे लिखना होगा, y इज लेस देन इक्वल टू x+4। बेटा इक्वल टू तब आएगा जब ये डार्क लाइन बनी हुई होगी, और ये इक्वल टू तब हट जाएगा जब ये डॉटेड लाइन बनेगी। बच्चों ये बात समझ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अनफॉर्चुनेटली यस सर। 2 मिनट है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे चलाऊंगा। इस वीडियो को मेहरबानी करके वापस जरूर देखना, जरूर से भी जरूर वाला गेम चलेगा इसमें, वापस जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत बहुत नेसेसरी है। यहीं तक रख लेता हूँ, होपफुली थोड़ी बहुत बात जरूर समझ आई होगी। इसी को आगे एक्सटेंड करें, खाली यही कॉन्सेप्ट है, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है। फिर पास में भागेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, पर यहाँ पर हम बहुत बड़ी बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने चूज ये किया था कि मुश्किल चीजों को लेके चलते हैं, आसान तो आराम से हो जाएगी। यहीं तक रख लेते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।